क्या हाल है? सबका चल रहा हेलो, है? गुड इवनिंग। यस। Okay. So market is sideways for last 1 month, I guess, right? Or 15 days. Okay. So let's discuss quickly. I have to finish in half an hour. After that, we'll talk about options and also. Yeah. So let's start with Nifty. So on medium term, still no trend, right? Sideways. Monthly still bullish. No doubt about monthly bullish. Daily means short term sideways. It was bearish for a few days, I think 4 to 5 days, but again it has come down to 40 to 60 range. So unless it is not going again to 40, below 40, then that means this is sideways. And then after, most probably in January, something will get decided whether it will go up or down. So I also think that for next 15 days it should be sideways only, within range of 17,000 to 17,500 or so, I guess. But if it breaks 17,000 again, then it may go down to 16,500. So that will act as a major support now, 17,000. So still long term market is still bullish. Let's see Nifty Bank now. So Nifty Bank also same. It has come out of the bearish zone. Now it may become sideways for few days for short term. For medium term also it looks sideways only. Consolidation within a range. So unless it is not crossing again 37,800, till the time momentum will not come. It has to cross at least 38,000 in order to gain momentum. But monthly still bullish only. So if you want to buy banks for long term, then you can definitely buy, but not for short term and medium term. So if you see any signal in any bank, then definitely go for it for long term. Okay. What else? Nifty IT. So IT again, long term still bullish, very much bullish. It is just consolidating from last 4 months. Weekly also looks bullish only because it has come above 60. Only short term is non-trending, correct? So it is consolidating between 40-60. See the magic of 40-60, guys. From October it is ranging between some range, right? It is just here and there, something like that, up down up down up. Actual momentum comes when it crosses RSI 60. See, so same thing may happen once it again crosses 60, then that will be a golden opportunity to buy IT again. Okay, so don't hesitate at that point of time to buy IT. But yeah, but long term you can still buy, and for medium term also you can still buy. Okay, next, pharma. Long term still bullish, but medium term is not great sign. Daily is also not great sign, so you can just avoid pharma stocks. There is no such momentum. Not sure about any individual stock. Let's see Sun Pharma. Yes, still it is below 60, so unless it crosses 60, we will not buy. Once it crosses 60, then we'll buy. Most probably once it crosses 60, it will come out of this zone also, 800 break. Then you can definitely go for it. Then Nifty Auto.
Auto same story, daily not bullish, not bearish. Weekly still in sideways zone. Monthly bullish. So again, for long term you can buy auto, but it would be good to cross once this level, then we should buy. That will be a good sign. Because of semiconductor issue and all, auto stocks are not performing, right? But once it crosses this level, then definitely you can buy auto stocks. But right now also, if you think some auto stocks is good technicals, then definitely you can go for it. So this was auto. Next, Nifty Realty. Yes, long term bullish, medium term also kind of bullish only, still above 60, struggling nearby 60, and daily also sideways. So once it cross 60, then you can buy. But right now, if there are any signal for medium term, definitely you can buy. Because again, we have discussed so many times GMR Infra. In every call, I am saying GMR Infra, right? So that is showing very good signs. We can definitely have this stock, guys. It is looking good on weekly term also, and then monthly also it is looking good. So you should definitely have this stock in your portfolio. Whoever that does not have, please buy it, at least some quantity. This is looking very strong. एक बार इसने पकड़ लिया तो कहाँ रुकेगा, I don't know. Definitely यहाँ तक तो आ ही जाएगा 60-70. So you will get almost 50% return, right? But it may take time. I'm not saying immediately, but 1 month, 2 months, 4 months, 6 months, कभी भी तो जाएगा तो जाएगा. Because बार बार ये नीचे आता है फिर उठ जाता है. That means momentum is strong. Once it crosses 60 again, then it might break out. Not only this, all the these stocks, realty stocks are having similar chart pattern. See, weekly mein it is consolidating, monthly bullish. Best part is that all the realty stocks are bullish after so long, after 10 years or 12 years, bullish stocks, they are showing the bullishness. Can you see? 2009 के बाद DLF ने कभी बुलिश दिखाया नहीं. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हुआ था, 1 मंथ 2 मंथ के लिए. उसके बाद सीधा अभी बुलिश हुआ है और बुलिशनेस जोन में है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा और फिर वो भागना चालू करेगा. ओके, so make sure you have some or other realty stocks in your portfolio, but obviously follow your stop loss. इसमें दिख रहा है मोमेंटम रियल्टी स्टॉक्स में. शोभा, yes, this is also looking good. वीकली भी सही है इसका. डेली में भी साइडवेज हो गया है, बट दैट्स ओके. ओके, एंड देन निफ्टी कौन सा रह गया? PSU. Daily still sideways. Weekly also looks sideways only. But still it is holding this level. That means it may come again. So once it crosses 60, then you can buy PSU Bank also. And obviously at that point of time, monthly will also cross 60. That will be a good opportunity. Now see Nifty Metal. Metal still bullish on long term basis. Medium term it is becoming sideways, but most probably it will pick up the momentum again. Let's see. Daily sideways. Yes, so let's see the leaders, how the leaders are doing. Tata Steel. Yeah, leaders are also not performing, so that is why. Weekly also.
So, but see, long term still bullish, right? So you can definitely buy this if you want for long term. For medium term, it has to cross this 60. Yes, but on daily terms, it has come across from this level. Okay, guys. So that's it on high level. I have discussed all the sector and all. So any specific stocks or something you want to discuss, you can ask now. So basically, realty stocks looking good. IT is also looking good. Rest all is not looking good, but still, based on signal, you can definitely go and buy. Okay. पूछो क्या क्वेश्चन है? नहीं, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। ऑप्शन में पूरा पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया क्या? हाँ, वो एक्चुअली उस पे ध्यान ही नहीं गया अभी, नॉर्मल इस पे मतलब ऑप्शन पे ही ध्यान जा रहा है, मतलब बट इतना मूव नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है ऑप्शन में भी। आज भी इस 300 के आसपास प्रॉफिट लॉस दोनों भी है, बट ऑप्शन में इतना जल्दी थोड़ी होगा, डेली होगा तो 10-20 हजार बना लोगे ना। हाँ वो तो वही है। 4 बनाना है ना महीने में, एक हाँ लाख पे। नहीं, जस्ट मैं देख रहा था, बट इट वाज गुड और बड़ा और नॉर्मल ही जा रहा है। मुझे लगा ज्यादा टाइम देखना पड़ेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो जस्ट एक ही ऑप्शन के बोलते ना, मार्जिन पे घूमते रह रहा है। 63 पे लिया तो 63, 62, 61 इस पे घूम रहा है दिन भर, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा था, मुझे लगा कि वो घूमेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। नहीं, दिन भर नहीं देखना है, दिन में 3 बार देखना है बस। हाँ ओके, नहीं जस्ट ऐसा मुझे लगा उड़ेगा वगैरह, बट मार्केट मुझे लगा कल से 2 दिन से तो वैसे ही उधर ही घूम रहा है निफ्टी पूरा, कुछ हाँ भी तो नहीं। निफ्टी साइडवेज है ना, देखा तो निफ्टी हाँ साइडवेज में है। तो वैसे ही घूमेगा ना। डेली में जो रहेगा वैसे ही काम करता है वो। हाँ 40-60 के बीच में तो वही काम करने वाला है अभी, जब तक ये 40 नहीं दोबारा ब्रेक करेगा, या तो 60 ब्रेक करे या 40 ब्रेक करे, हाँ करेक्ट करेक्ट, तभी ट्रेंडिंग होगा। वो भी है करेक्ट। ओके, एनीबडी एनी क्वेश्चन अबाउट योर पोर्टफोलियो? कुछ स्टॉक देखना है तो बताओ आप। ये वीक में तो सर्च नहीं किया ऑप्शन की वजह से, बट ये नेक्स्ट वीक तक करना है सर्च कि कौन सा नया स्टॉक वगैरह का। देखना था मुझे एक दीपक फर्टिलाइजर देखना था, और फिनोलेक्स केबल देखना था। दीपक फर्टिलाइजर ना? हाँ ये शायद लास्ट टाइम भी देखा था। अभी तो साइडवेज ही दिख रहा है, कुछ मोमेंटम है नहीं। और फिनोलेक्स नहीं, साइडवेज से भी नीचे ही लग रहा है। प्योर साइडवेज है ये तो। फिनोलेक्स केबल ही यही है शायद से। ये भी अभी वीकली में देने वाला है, एक बार 60 क्रॉस करने दो, देन यू कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में तो एंट्री है नहीं, एंड देन बट या लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल लुकिंग गुड। या दिस वन ना, हाँ चलेगा। ये 250 तक है इसका पोटेंशियल, देखो 150 है ना, ये लो कितना था 50, हाँ और ये 150, हाँ तो 100 250 तक तो जाके आ ही गया ना एक बार, देखो। हाँ तो अभी वो ट्राई करेगा फिर से जाने के लिए, तो हो सकता है। हाँ ये तो है, मतलब फादर तो खींच ही रहा है, ऐसा लगा इसको भी ये क्रॉस करना चाहिए। जब तक ये 60 क्रॉस नहीं करेगा मत लेना, नहीं तो कभी कभी यहीं से घूम जाता है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, और डेली में मोमेंटम आ जाएगा ना तब। हाँ मेरे 2-3 अटक गए एक्चुअली, मैंने जॉब की वजह से ध्यान नहीं दिया। मैंने शायद एक मेरा भारत फोर्ज अटक गया शायद। क्यों अटक गया? स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे क्या? स्टॉप लॉस लगाया था और डाउन, मैंने 2 बार पीओए का फॉर्म भरा, बट पता नहीं वो कुछ आया ही नहीं, ऐसा हुआ है। मुझे लगा के देखा? अभी स्टॉप लॉस लगा के देखो ना दिन में। ओके देख लेता हूँ मैं फिर। होल्डिंग में लगा के देखो, समझ में आ जाएगा। जीटीडी लगाया था पर वो निकल गया, फिर वो
उसके लिए अब ये भारत फोर्ज ऐसा लग रहा है कि इसने लॉस दिया मुझे, और अशोका लैंड, ओके अशोका लैंड ने दिया लॉस। पीओए का फॉर्म ना चेंज किया है, कुछ नया चेंज नया। किया मैंने 2 बार भेजा, मतलब एक बार भेजा फिर फोन किया, उन्होंने बोला कि एड्रेस अलग दिख रहा है, फिर दूसरी बार भेजा तो अभी तक कुछ ऐसा ये नहीं आया। नया फॉर्म आया है उसका। ओके नया फॉर्म है क्या? चले अब मैं देखता हूँ। मेरा इसको भी यहाँ पे निकल जाना था ना आपको भारतपुर समझ। हाँ ये एक्चुअली बहुत हाँ लॉस में, मतलब 800 लॉस में है अभी भी। तो ऐसा नहीं है। और एसआरटी ट्रांसफॉर्म ये देख सकते हो, एसआरटी एसआरटी हाँ पहले ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी जस्ट रीड होगा 2 दिन पहले मुझे लगता है। डेली में वीकली में? हाँ वीकली नहीं में। ये सब वीकली में ही मैं कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसी वीक हुआ होगा। देख लो अगर ऊपर नहीं आता है मूविंग एवरेज के तो अगले वीक निकाल लो। वही, और मैंने एक माल है आशा है, यहाँ के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो ये वाला जो है ना, ये लेवल अगर तोड़ दिया तो यू कैन एग्जिट 13। इस कैंडल का लो अगर तोड़ दिया ना तो यू हैव टू एग्जिट एनी हाउ। हाँ, 1300 तक वेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके तो वो कैंडल कैसे डिसाइड किया आपने, मतलब वो कैंडल हाँ ये वो स्टिक है ना, ये लेवल है ना, ओके देखो स्टिक के, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। ये जो रेजिस्टेंस था पहले वही सपोर्ट बन जाता है, तो आइडियली इट शुड टेक सपोर्ट हियर 1330 के आसपास। अगर वहां नहीं लिया तो दैट मींस इट इज गोइंग डाउन। ओके एनी मोर स्टॉक्स? एलटीआई देखना था और कार्बन ड्रम यूनिवर्सल देखना था। सर इन्फोसिस। इंफोसिस इन्फोसिस का न्यूज़ बहुत सुने हैं अभी। इन्फोसिस के लिए वीकली में सर। सिग्नल आया नहीं है शायद। अभी कौन सा सेक्टर में सिग्नल है? ऑटो में लगता है होगा। हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए इनफिनिट गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। टीवीएस मोटर अभी भी मुझे रखो लगता है होल्ड सर, रखो सर इसको। हाँ बट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में सिग्नल नहीं है अभी। मीडियम टर्म में 60 हाँ नहीं क्रॉस सर, लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ चलेगा। डेली में भी सिग्नल नहीं है बट लॉन्ग टर्म में लेकिन सिग्नल तब से है, लेकिन साइडवे में ही चल रहा है सर। आया गया। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन बताओ, कब से है बताओ आपके पास? 3 महीने से सर। और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है? 2 साल का। 2 साल तो तक। फिर लगाए हो लॉन्ग टर्म के लिए और एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 महीने में, कैसे होगा? नहीं सर, कुछ तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एलटीआई देखोगे सर? एलटीआई और जब निकालोगे ना तो उड़ जाएगा। हाँ ये वही याद रखना। प्रॉब्लम है। और हाँ। LT8 देखना सर। आगे हम ये देख भी चुके लॉन्ग हैं टर्म के लिए भैया, सही है ये भी। रूल ब्रेक करके। मीडियम टर्म भी सही है एलटीआई। सर LNT एलटीआई कौन सा है यार? लॉन्ग टर्म का है सर। है ना boss? एलएनटी इज आल्सो लुकिंग गुड। हाँ 60 क्रॉस किया हुआ है। आप- मीडियम टर्म इज आल्सो गुड। आप ही बोले थे ना सर लास्ट टाइम रखने के लिए। मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में चलेगा ये। एक कार्बन ड्रम यूनिवर्सल करके है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल का था। तो जैसे टीवीएस मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही है आई थिंक। ये क्या है? गोवा कार्बन और कौन सा ये? शायद हाँ यूनिवर्सल, हाँ वही वही। वीकली में तो कितना अच्छा सिग्नल आया था यार। यहाँ पे अगर लेते थे इसको 286 का 4 टाइम्स हो जाता था। और वो भी अभी जस्ट अक्टूबर से और ऊपर ही रह रहा है। तो यहाँ भी पकड़ते थे तो 700 का 900 तो हो ही जाता था। ये एक्चुअली उस टाइम सिग्नल समझ में नहीं, उस टाइम ये स्टॉक दिखता नहीं है ऐसा। तो मेहनत करना पड़ेगा ना, एवरी वीकेंड करते सर क्या? ये सर सप्लाई जोन डिमांड जोन का क्या है सर ये फंडा? वो सब आरएसआई में फैक्टर इन होता है। हाँ सर। वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको ही आता है तो। आरएसआई
शॉर्ट टर्म के लिए अभी जस्ट आएगा ऐसा लग रहा शॉर्ट टर्म के लिए आए तो पकड़ लो, ये वाला लेवल क्रॉस करना चाहिए 1000, अब रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, है। हाँ ये सप्लाई जोन हो जाएगा, ये जो बोल रहे हैं ना। हाँ, तो बहुत टाइम से ये मतलब अक्टूबर से उड़ना चालू है। ओके